मैं ऑडिबल सुन सकते हैं। मैं हाँ सुन अंकल। सकता हूँ, मैं हाँ सुन अंकल सकता सुन हूँ। सकते हैं। थैंक यू। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज today God has given me an opportunity to share God's word. We will. I want to share something God has put in my heart today. अंकल यू वांट मी टू ट्रांसलेट फॉर यू? Maybe that's better. ओके। Hmm. Before we go into today's Bible study, we will ask God's help. We will स्टडी से pray. पहले We'll pray. हम लोग प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, we thank you for this time. Lord, please talk to each one of us as a mark of your love. हमारे प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज आपके प्रेम के लिए। आज हमसे आप बातें करें। Lord, we commit the network connection of all of us into a loving hand. Lord, please help us and speak to each one of us. Speak to me. Use me for your glory and honor. प्रभु, ये सारी नेटवर्क कनेक्शन को, सारी बातें को आपके हाथ में देते हैं। आप हमसे बात कर, मुझसे बात कर और आपकी महिमा तू ले। Thank you for listening our prayers. प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In the Lord Jesus' most precious name we pray. प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। Amen. I may put off the video after some time in case if it is problem. Okay. You can see me my video. या अंकल इट्स फाइन। Okay. So I want to share screen with you. मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। This is Emma's Journey Bible study. There are some 18 points I have found out the Lord in my heart. I'll try my level best to share as many as possible as the time permits. ये एमोस जर्नी, ये बाइबल स्टडी है, बाइबल अध्ययन है। यहाँ पे 18 जितने पॉइंट्स जितने हैं, उसमें से जितने ज़्यादा हो सके मैं कवर करना कोशिश करूँगा। First of all, we read from Luke chapter 24. Please turn with me to Luke chapter 24. सर्वप्रथम लूका की पुस्तक 24 अध्याय में आइए। So it is starting from verse 13 and 13, 14, 15, and 16. This verses 13 to 16. Please, brother, can you please read it? 13 to 16. लूका की पुस्तक 24 अध्याय से 13 से 16 तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। उसी दिन उनमें से दो जन इमानुस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। परंतु उसकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वो उसे पहचान न सके। Thank you. This is Amos गांव को जा रहे थे यरूशलेम से एमोस तक 7 miles. That means about 11 kilometers. एमोस से यरूशलेम 11 किलोमीटर की दूरी पे है। And then walking, normal walking, it will take 2 to 2.5 hours. एक साधारण जो चलते हैं उसे 2 से ढाई घंटे लगता है। This incident happens the resurrected day in the evening, afternoon. ये दोपहर को, ये शाम के समय पे ये घटना हुआ था।
And these two people were talking and going, and then Jesus went and started walking with them. यहाँ पे दो जन ऐसे चलते हुए बात करते जा रहे थे और यीशु उनके साथ चलने लगे। But they could not recognize him. लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। Jesus was a stranger to them. वो यीशु उनके लिए परदेशी था। So, as they started walking, and Jesus started talking to them, what are you talking? All these things. जैसे इन लोग चल रहे थे तो प्रभु यीशु ने पूछा कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। So they started talking many things. You know all these things, and that's what happened in Jerusalem. They started explaining. उन लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हें पता है यरूशलेम में क्या हुआ, और वो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। But they could not recognize, the Bible says in 16th verse, but their eyes were prevented from recognizing him. लेकिन ये 16 पद में प्रभु का वचन कहता है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वो उसे ना पहचान सके। So it is very, very important in our Christian life. If the Lord opens our eyes, only we can see the wonderful things out of God's law. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये मसीह जीवन में ये है कि जब तक हमारे आंखें नहीं खोलता तब तक हम उसके व्यवस्था के वचन नहीं समझ सकते। In the screen already written there, you can, from memory, you can translate Psalm 119:18. Open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. हाँ, यहाँ पे स्क्रीन में जैसे लिखा है भजन संहिता 119 के 18 पद है, प्रभु मेरे आंखें को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की बातें मैं देख सकूं। It is very important. God has to open our eyes, otherwise, we can never see the beautiful things from the scripture. हाँ, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमारे आंखें खोले, नहीं तो हम बाइबल से अद्भुत बातें नहीं देख सकते। And another thing, principle we learn is the Lord Jesus started walking with these people. Actually, in verse 17, it says they were very sad. They were very sad. They were not happy at that moment. यहाँ पे 17 पद में देखते हैं, ये दो लोग वे उदास से खड़े रह गए। So, and there's a principle. If you are sad today, remember, Jesus wants to walk with you. यहाँ पे एक ऐसा है कि अगर आज के दिन में आप दुखित हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलना चाहता है। Psalm 34:18 says, Jehovah is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as are of a contrite spirit. भजन संहिता 34 अध्याय के 8 पर 18. 18 पद पे, भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। So, our Lord Jesus, He is interested in our life when we are very sad. हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तब रुचि रखता है जब हम लोग दुखित रहते हैं। So it is a very important to know that thing, because sometimes we all get discouragement. But this verse reminds that our Lord Jesus wants to walk with us when we are sad. लेकिन ये वर्ष ये हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलना चाहता है जब हम दुखित हैं। And then Jesus said, what you are talking about, and all these things they are explaining from 18 onwards, from 19 onwards, they are replying, and many things they are telling about Jesus of Nazareth. हाँ, यहाँ पे ये तर्क वितर्क होने लग गया। 18-19 से 19 में हम पढ़ते जाते हैं कि बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ बताया। And then verse 21 says, but we kept hoping that he would be the one to redeem Israel. What is more, this is now the third day since these things occurred. Verse बात 21.
बातचीत होते हुए ये 21 पद पे वो आ गए, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। And then they said some of our women, they surprised us. They told his body is not there. And then some of our friends went and saw, and then they saw the angel. All those things they were explaining one by one. और ये लोग एक दूसरे में ये बता रहे थे कि हमारी जो बहनें वहाँ पे गई थी और उनको प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं मिला था, वहाँ पे गए थे, स्वर्गदूत वहाँ पे दर्शन के लिए बैठे थे, इत्यादि। Now, and remember, at this moment, Lord Jesus is a stranger to them, Ajnabi, because they could not recognize him. हाँ, इस समय तक ध्यान दे कि प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ चल रहा था, उनके लिए वो अजनबी था। They had a clear explanation of what happened in Jerusalem on that day. यरूशलेम में उस दिन क्या हुआ था, वो अच्छी तरह से उन्होंने उन्होंने बताया था। Lot of knowledge and well explained what is happening. Everything they told. This is what happened. इस घटना को सटीक तरह से बताया था, बहुत सारे ज्ञान के लिए सब कुछ जैसे हुआ था वैसे ही बताया था। After listening all these things, सब Jesus said in verse 25, then Jesus told them, "Oh, how foolish you are, how slow you are to believe everything the prophet said." हाँ, ये दोनों लोगों की बातें सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा, 25 पद पे मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने उसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मातियो। And what Jesus was telling, you are foolish men because of one thing, that is, you did not believe all that the prophets have spoken. हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हे बुद्धियों निर्बुद्धियों, क्योंकि तुमने बातों वक्ताओं की जो बातें बताई, उस पे तुम लोग ने विश्वास नहीं किया। We are children of God. We may believe many things from the scripture, but sometimes we may not believe everything the scripture says. And then God may call you and me the same thing, foolish one. हम लोग प्रभु के संतान है, प्रभु परमेश्वर की संतान है। बाइबल में से बहुत सारे बातें को हम विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है हम जब सब बातों को हम विश्वास ना करें, तब प्रभु हमें निर्बुद्धि के बुलाता है। And he called them, "O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." हाँ, उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातें पर विश्वास करने में मद मतियों। Now, in Luke 10, chapter verse 21 says, I have given it down there, "O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight." हाँ, यहाँ पे लूका 10 अध्याय के 21 पद में ये लिखा है कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। Now, what a blessed people we are. कितने God has कितने धन्य God लोग हम हैं। blessed us, He revealed His Son to you and me. प्रभु ने अपने पुत्र को हमारे पे प्रकट किया। So, believing all what the Lord says is a privilege for the children of God. ये प्रभु जो जितने भी बातें बताता है, उसको विश्वास करना तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। And then after that, the Lord Jesus, he started explaining to them certain things. Verse 27, 26 में है, the Messiah had to suffer these things and then enter his glory. And didn't he? Like that he was asking.
उसके बाद में 24 अध्याय का हमारे पाठ में 26 से प्रभु उनको बताने लगा कि कैसे प्रभु को ये सारी सतावट में होके जाना था। So, blessed ones who enter into the glory of the Lord after going through suffering. धन्य वो लोग जो प्रभु के महिमा में अपने परिस्थिति समस्या में जाके पहुंचते हैं। So Jesus himself is telling them, was it not necessary for the Christ to suffer these things and then to enter his glory? ये प्रभु यीशु मसीह खुद वो उन लोगों को कह रहा था कि क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। Now we hear so many news about God's children are persecuted, put them into the jail, keeping them in police custody, and going through very severe hardship is going through that thing. So when you hear all these things, it is good to remember the Lord said in this verse 26, was it not necessary for the Christ to suffer these things and then enter his glory? So it is a pathway. We need to go through that thing. आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कैसे मसीह लोगों को सताया जाता है, उनको जेल में डाला दिया जाता है। लेकिन हमें ध्यान दें कि ये 26 पद जो प्रभु यीशु मसीह में कहा था, क्या अवश्य न था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये हमारे प्रवेश Connected करने का एक जरिया है। connected to this principle, we have to go through suffering and then enter into the glory of the Lord. There are two verses I have mentioned here. Philippians 1:29. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in but also to suffer for him. यहाँ पे ये दो सिद्धांत से हम लोग ये सीखते हैं। और फिलिपी 1 अध्याय के 29 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। It is a privilege. Paul writes to Philippians, he was writing this one from the jail and he's telling it is on behalf of us. It's a privilege for us to go through the suffering. पॉल फिलिपी की मंडली को जेल से ये लिख रहा है कि ये प्रभु के लोगों के लिए सौभाग्य है कि वो उनके लिए दुख उठाएं। And then verse 14 of chapter 14 of 22 of Acts chapter, it says, they strengthened the believers and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God, they taught. अ, प्रेरितों का प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 14 का 22. प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 पद। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 पद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और वो कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। It says we must pass through many troubles, not some trouble, many troubles to enter the kingdom of God. हमें छोटा मोटा नहीं लेकिन कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। So now we see the next principle. We are privileged people. Blessed are those who go through this suffering. Now, principle five, people of the book, Genesis to Revelation. God has given us his precious word. ये पांचवा सिद्धांत ये है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ लोग, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो लोग लिखे गए हैं। And verse 27 says, he said, then beginning with Moses and all the prophets, he explained to them all the passages of scripture about himself. तब ये 24 के 27 पद में हमारे पाठ में पढ़ते हैं, तब यीशु ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। Now we are privileged people. We have from Genesis to Revelation. Complete, it is given.
हम लोग इतने सौभाग्य लोग हैं कि हमें उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त तक कई लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता। But when Jesus was talking to these people, New Testament was not there. And then he was telling from Moses and all the prophets. And he explained to them all the prophecies concerning himself. क्योंकि उन दिनों जब प्रभु यीशु मसीह इन दोनों से बात कर रहा था, नया नियम लिखा नहीं गया था, तब प्रभु यीशु ने कहा कि मूसा से लेकर भविष्य वक्ताओं तक, That is prophecies concerning Jesus. उसके बारे में जो भविष्यवक्ता की गई थी यीशु के बारे में, वो बताए। There were so many prophecies were mentioned in the Old Testament. He did not pick all of them, but only the prophecies concerning Jesus. He picked one after another and explained to them. बहुत सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में लिखी गई है, लेकिन यीशु ने वो सारा भविष्यवाणी नहीं बताया, लेकिन उन्हीं भविष्यवाणी को बताया जो यीशु खुद के बारे में लिखा गया था और उनके बारे में So, समझाने लगे। yeah, for example, the first prophecy about Jesus is Genesis 3:15. जब ये उदाहरण के तौर पे 3:15 उत्पत्ति में पहला यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी है, उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में दिया गया है। Please read that one, Genesis 3:15. That's the first prophecy about Jesus. उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहला भविष्यवाणी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। So here it says Jesus, about Jesus, this is the first prophecy. So he explained one after another only the prophecies concerning Jesus, he explained to them. ये सिर्फ जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह से ताल्लुकात रखता था, वही उन्होंने एक बार एक करके समझाया। Remember, now also he is a stranger, Ajnabi. They did not recognize Jesus. हम लोग ध्यान दें कि अभी तक ये दोनों लोगों प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लोग अजनबी थे, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अजनबी थे। So this stranger, he explained the prophecies concerning Jesus to these people. तो ये अजनबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन लोगों को भविष्यवाणी समझा रहे थे। But today we have the Holy Spirit who will, when he comes to our life, he will guide you into all truth, not some truth, all truth he will reveal to us. आज John 16:13. हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे सारी जो सच्चाई है, कुछ कम नहीं, सारी जो सच्चाई है वो हमें प्रकट करता है। So from Moses means from Genesis, he started explaining all the prophecies concerning Jesus and to these two people. ये अजनबी मूसा से जितने भी उत्पत्ति से लेके जितने भी भविष्यवाणी यीशु के बारे में किया गया उनको समझाने लगा। And then when he was explaining all these things, and then they covered the distance. That means they were almost reached Amos. हाँ, अब जब इन्होंने जो भविष्यवाणी उनके बारे में जो समझाया, सुनते सुनते वो लोग वहां से एमोस तक वो लोग पहुंच गए। When they reached that place, there is something we need to learn from that place. Jesus, he acted as if he is going forward. हाँ, यहाँ पे जब हम लोग ये भविष्यवाणी जब उन सुना के आगे चल रहे थे, यीशु मसीह ऐसा किया कि जैसे उनके साथ आगे चल रहे हैं। So he acted as he had a great desire to go to their home, but he's acting. I'm going on. I'm continuing my journey. हाँ, उन्होंने मानो ऐसा किया कि वो उनके साथ आगे चल रहे हैं। And then we read in verse 29, 29 means, but these two people strongly urged him, in another way, compelled him, constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is
now far spent, and he went in to abide with them. तो 29 पद में जब हम पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन का बहुत ढल गया है। Now, 2.5 hours he was talking with these people. That means they covered 11 kilometers. ये 11 किलोमीटर ये चल के प्रभु यीशु इन्होंने 2.5 घंटे इनके साथ बिताया था। So that is 7 miles or 11 kilometers. So when it finished, this many time he was exposing the word of God, all the prophecies concerning Jesus to these people. तो ये 2.5 घंटे के अंतराल पे ये जो इनके लिए अजनबी था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितने भी भविष्यवाणी है वो उनको समझा रहा था। Now, what is the result of the 2.5 hours preaching or teaching the word of God? ये 2 2.5 घंटे प्रभु के वचन सिखाने का परिणाम क्या हुआ? It was an anointed ministry. ये अभिषेक किया हुआ सेवा था। It was never a boring sermon. यहाँ पे कोई एक बोरिंग टाइप का ऐसा वचन नहीं था। How do we know whether it was not a boring sermon? हमें कैसे पता चलता है कि उनको बोर नहीं हुआ, बोरिंग नहीं था? Suppose if they were bored, Jesus was boring them, what they will do? अगर वो उनको सुन के उनको पक गए होते, थक गए होते, वो लोग क्या करते? So Jesus will go forward, प्रभु यीशु मसीह आगे चलते जाते, and then these people, after Jesus, crossed a little distance, when they say something to each other, Jesus will not hear. हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह आगे निकल के जाते तो ये दो लोग एक दूसरे में बात करने लगते ताकि वो प्रभु यीशु मसीह ना सुने। Okay, if that much distance Jesus covered at that time, what they will say? I think something like this. If Jesus had bored them, they will say, बाप रे, हिंदी में मतलब हमें मार डाला, वे बोर करके मार डाला, हाँ, लाइक दैट दे विल से, हाँ, वो ढाई लोग घंटा हमें मार डाला, ऐसा बोलेंगे. 2.5 घंटे हम उनको पकाया इन्होंने। But they never said like that. लेकिन इन्होंने ऐसे बात नहीं बताया। What did we read? They constrained him, they compelled him, as if they're telling, he is Ajnabi only, stranger only. We will not allow you to go. You have to come to our home and stay with us. लेकिन ये तो उनके लिए अजनबी था। फिर भी वो उनके साथ बोलने लगे कि आप आके हमारे साथ बैठो, भोजन करो। Now the principle is written there, sixth number blessing from Amos journey. 6 is anointed ministry never becomes boring. वो ये छठा पॉइंट जो है, जो जो ब्लेसिंग्स एमाउस के जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये है कि जो अभिषेक किया हुआ जो सेवा है वो किसी को नहीं बोरिंग करता। Jesus was never a boring preacher. प्रभु यीशु मसीह कभी भी बोर करने वाला प्रचारक नहीं था। His ministry was always anointed ministry. प्रभु का सेवा जितने भी थे सारे ये अभिषेक किया हुआ सेवा था। What is the requirement to have an anointed ministry is mentioned in Hebrew 1:9. जो ये अभिषेक किया हुआ सेवा पाने का जो है वो हिब्रू 1 अध्याय के 9 पद में लिखा गया है। We'll see that verse, Hebrew 1:9. इब्रानियों This is 1 अध्याय God the Father's testimony about his son Jesus. प्रभु परमेश्वर पिता का पुत्र के विषय में ये साक्षी है। हिब्रू You have, yeah, please read it. Please read it. इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरी अभिषेक किया। This is a requirement. ये If आवश्यक। anybody wanted to have an anointed ministry, you need to do these two things. किसी को भी अगर अभिषेक जो किया गया सेवा करना है तो ये दो बातें करना जरूरी है। One is you should love the righteousness. एक है कि हम धर्म को प्रेम करें, धार्मिकता को प्रेम करें। That means you should love the truth. इसका मतलब है कि हम सत्य को प्रेम करें। Jesus loved the truth.
प्रभु यीशु मसीह ने सत्य को प्रेम किया। For us, for Jesus, it is loving the truth, righteousness. But for us, loving the truth means loving Jesus because Jesus said, I am the truth. प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम करना धार्मिकता था, हमारे लिए प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह है। That means you love the word of God that is equal to you love the Lord Jesus. जब हम प्रभु के वचन को प्रेम करते हैं कि वो प्रभु को स्वयं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना बराबर है। Word became flesh, that is Jesus. प्रभु का वचन देहधारी हुआ, वो उसका मतलब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। You and I need to love the word of God, love God's word. That means you should love Jesus. जब हम प्रभु यीशु के वचन को प्रेम रखते हैं, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। This one action is not enough to have an anointed ministry. ये एक कार्य अभिषेक सेवा के लिए काफी नहीं है। One more thing you need to do. एक और बातें हमें करना है। And you have hated wickedness, lawlessness. और अधर्म से बैर रखा। You and I should hate sin. This is the thing. हमें पाप से बैर रखना है। These two things, if you do, scripture says you will be anointed. हम ये दो बातें जब करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम अभिषेक हुए हैं। Jesus' ministry was never a boring sermon. प्रभु यीशु मसीह का सेवा कभी भी बोरिंग नहीं होता था। It was an anointed ministry. वो अभिषेक किया हुआ सेवा होता था। And because of that thing, the result we see, these two people, they did not recognize it is the Lord Jesus. They are forcing the stranger, no, we will not allow you to go. Bible says they constrained him, compelled him. No, we will not allow you to go. You have to come and stay with us. क्योंकि ये अभिषेक सेवा था और क्योंकि ये दोनों नहीं जानते थे वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उनके लिए वो अजनबी था, फिर भी वो बोलते हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे घर पे आओ, And, हमारे साथ खाना खाओ। and then verse 29 says, and the day is now far spent. 29 पद में ये कहता है कि अब दिन तो बहुत ढल गया है। That means the sun was set. उसका मतलब है सूर्य अस्ता रहा है। Wherever you read sunrise and sunset in the Bible, there is something to learn there. जब भी हम प्रभु के वचन में सूर्य उगना और उसका अस्ताना जब हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उसमें यहाँ पे कुछ ना उसका अर्थ रहता है। Sunrise and sunset is not a big event. Every day it happens. हाँ, सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना रोज का कार्य है। But in the Bible, when you read that, there is something you can learn. लेकिन जब वचन में बाइबल में इसके बारे में जब लिखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। Here we see a timing factor there. यहाँ पे कुछ समय को हम देखते हैं। After 11 kilometers or after 2.5 hours walking, they came to the time 6:30 about approximately that sunset time 6:30. इसके द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 11 किलोमीटर 2.5 घंटे में चलने के बाद जब सूर्य अस्त हो रहा था, मान के चलो 6:30 बजे के समय हुआ होगा। That means what time they would have started from Jerusalem. उसका मतलब है कि वो जब 6:30 बजे में वहां पे पहुंच गए माउस, तो यरूशलेम में कब That चले होंगे? निकल गए. Okay, that means 2.5 hours you minus from the 6:30. That means around 4 o'clock they started their journey. जो 6:30 से जब हम 2.5 घंटे निकालते हैं तो मान के चलो 4 बजे वहां से वो चले होंगे। There is a purpose in sharing this timing factor. यहाँ पे ये समय को दिखाने का एक कुछ उद्देश्य है। I will tell you a little later. Okay. Now they around 6:30 they said we will not allow you to go. So then what Jesus did? Jesus went and went with them to their home. जब उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे तो प्रभु मसीह उनके साथ चले गए। Now remember, Jesus has a dignity.
he will never go any place where the invitation is not there. हाँ, प्रभु यीशु मसीह का भी स्वयं या सम्मान है, वो बिन बुलाए जगह पे नहीं जाते। He will not come to our life without we invite him into our heart. जब तक हम अपने उनको हमारे जीवन में आमंत्रित ना करें, वो हमारे पास नहीं आते। They invited him to their home, so he went. उन्होंने अपने घर में उनको निमंत्रण दिया। Revelation 3:20 में we read that, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, then I will come into him and he will sup with him and he with me. हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखते हैं, 3 अध्याय के 20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। He went with them because they invited him to their home. ये उनके साथ इसलिए गए क्योंकि उन्होंने इनको निमंत्रण दिया घर आने के लिए। Sometimes, some of our life situations, we don't want Jesus to involve in that incident. हाँ, हमारे जीवन में कभी ऐसे परिस्थिति होते हैं कि हम नहीं चाहते कि प्रभु उस परिस्थिति में हस्तक्षेप करे। We try to manage, we try to solve the problem. हम उस समस्या को खुद समाधान करना चाहते हैं। We think we can do that one. हमें लगता है कि हम उसको समाधान कर देंगे। No need to pray, no need to ask God's help. I know how to do the thing. प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं वो उसको खुद कर पाऊंगा, उसको समाधान कर पाऊंगा। But remember, Jesus said one important statement. It's a small statement, but it's a heavy principle is hanging on that. Jesus said, without me, you can do nothing. एक छोटा ही प्रभु ने वचन बोला, जो शक्तिशाली जो वचन था, वो कहता है कि मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। So they invited him, so he went with them. वो उन्होंने उनको निमंत्रण किया, बुलाया, इसलिए वो उनके साथ चले गए। And now we read, Jesus went with them, and verse 30 we read, uh, ये हमारे पाठ में 30 पद में हम पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, तब उसने हाँ रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर हाँ उनको देने लगा। Okay, two things we can learn from that. दो बातें Jesus हम यहाँ is a से सीख सकते हैं। stranger, means he's a guest there because they invited. He's a guest. Okay, he's not a host there. But we see Jesus becomes the host of that family. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इनके घर पे बुलाया गया था, वो तो मेहमान थे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो मेहमान नवाजी खुद कर रहे हैं। Why did I say he became the host? There's a reason. वो खुद मेहमान नवाजी वो खुद क्यों कर रहे हैं, एक कारण है। We all go to sometimes a friend's house, a relative's house. हम यारी दोस्ती के हम लोगों के पास, अपने लोगों के पास घर पे जाते हैं। But some home, you go to the home, you don't ask any permission. You just to open the fridge and see is there anything. You just take and eat. क्योंकि कई घर में ऐसे होते हैं कि आप जाके वहाँ पे नहीं पूछते कि क्या करूँ, खुद आप जाके फ्रिज खोल के आप वहाँ पे खाते लेते हैं। All the house, you never do that thing. सभी घर में आप ये कभी नहीं करते। Some house you go there, whatever they give, you eat and you come. You don't take so much freedom there. हाँ, कुछ कुछ घर में आप जाते हैं, वो लोग जो आपको देते हैं वो खाते हैं और पी के आते हैं। But in such homes, you have got full freedom. You just take the things and whatever is there, you just take and eat or whatever you do that one. इनमें से कई घर ऐसे, कुछ घर ऐसे होते हैं जब हम जाते हैं कि हम अपने स्वतंत्र हो जाते हैं, हम कुछ भी अपने मनमानी करके वहां से लेके खा पी सकते हैं। And here we read, Jesus, when he, verse 30, while he was at the table with them, he took the bread. Jesus took the bread.
और यहाँ पे जब देखते हैं 30 पद में कि जब वो खाने को बैठा था कि प्रभु यीशु ने खुद रोटी लेकर धन्यवाद दिया। How come he takes the food from the table, dining table? He's a guest only. वो तो वहाँ पे मेहमान के तौर पे गया था, वो कैसे टेबल से खाना खुद लेकर ऐसे कर सकता है? I'm sure these two people would have said something like that. Please feel free with us, or whatever is there, please, have it like that way. They would have gave him the freedom to this stranger. हाँ, मेरा मानना है कि ये दोनों ने ऐसा प्रभु को कहा होगा कि आप अपना घर समझो, इसको कुछ भी आप अपने खा सकते हो, अपने घर को समझो। If that freedom was not given, Jesus will never turn to be a host in that place. He will continue to be a guest. हाँ, ऐसा उनको अगर नहीं कहा गया होता तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे मेहमान ही बन के रह जाता। These are the result of anointed ministry. ये एक अभिषेक किया हुआ सेवा का ये कार्य है। The stranger became like a one among them, like that. They started loving this stranger. कैसे ये एक अजनबी भी उनके तरह घुल मिल गया। When he was given that freedom, he जब did four actions. जब इस अजनबी प्रभु यीशु मसीह को जो ये जब उनको स्वतंत्रता दिया गया, उन्होंने Okay, 4 कार्य वहाँ पे किया। we'll read it as verse 30. He took the bread. That's the first action. पहला कार्य ये था कि उन्होंने रोटी लिया। Then the second action, he blessed it. और दूसरा कार्य है कि उसने उसको धन्यवाद किया। And then third one, he broke it in pieces. और तीसरा है कि उसने उसको तोड़ा। And the fourth one, he gave it to them. और चौथा उन्होंने उसको खाने को दिया। These four actions Jesus did there, remember, now also he is a stranger. ये 3 4 कार्य वहां पे किया, अभी भी ये उनके लिए अजनबी ही था। My beloved, I want to tell you, you and I should give our beloved Lord Jesus Christ full freedom in our home, in our life, to do anything to Jesus. Full freedom should be given. मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारे घर में पूरी स्वतंत्रता दें। He should not be a guest in your life. वो हमारे जीवन में मेहमान के तरह ना रहें। And so we learned that one. Now we'll see that four actions I've already mentioned. He took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. And then what happened? 31, verse 31 says, then their eyes were opened and they knew who he was and he vanished from them. हाँ, यहाँ पे जो 4 कार्य जो प्रभु ने किया कि उसने रोटी लिया, उसको तोड़ के उनको धन्यवाद दिया और उनको बांटा। उसके बाद 31 पद में जो परिणाम देखते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। And now remember, there are four actions I told, but one action, that is the third one, that is he broke the bread. At that time, their eyes were open. It is mentioned in the later. हाँ, यहाँ पे ये 4 कार्य जब किया, इसमें से तीसरा कार्य जो था, जब उसने रोटी को तोड़ा तो तब उनकी आंखें खुल गई। My beloved, there is something, a deep principle we can learn from that action. यहाँ पे एकदम गंभीर एक शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं। Then he took the bread, they could not recognize him, blessed the bread, he could not recognize, but when he broke it, their eyes were opened. They यहाँ पे recognized him. जब उन्होंने रोटी को लिया तब उनको उन्होंने नहीं पहचाना, जब उसको धन्यवाद दिया नहीं पहचाना, लेकिन जब रोटी को तोड़ा तब उनकी आंखें खुल गई, तब उन्होंने उनको पहचाना। Now, Jesus said, I am the bread from heaven. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं स्वर्ग से आया हुआ मैं रोटी हूँ। And this bread we know where it was broken. इसलिए हम इस रोटी को जानते हैं कैसे वो तोड़ा गया था। We know where this bread of heaven is broken. हमें पता है कि ये स्वर्ग का जो रोटी है वो कहाँ तोड़ा गया है। On the cross of Calvary.
कलवरी के क्रूस पे। So the principle is this: without looking on the cross of Calvary, nobody can recognize the Lord. प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में ना देखे बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सकता। That's the place that Jivan Ka Roti, the bread of life, is broken. इसलिए वो जीवन का रोटी जो है वो तोड़ा गया। Without believing on the Lord Jesus Christ at his redemptive work on the cross of Calvary, no one will be saved in the New Testament. नया नियम से कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में जो बिना देखे बिना उसको उस पे नजर मारे कोई भी हम लोग बच नहीं सकते। No one can have the salvation without looking on the cross. क्रूस में बिना देखे किसी को उद्धार और मुक्ति नहीं मिलेगा। See, Jesus died on the cross is a knowledge. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा ये एक ज्ञान की बात है। But Jesus died on the cross for me, that is salvation. लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मेरे लिए मरा ये उद्धार है। So we are blessed people because he helped us to look unto him. हम कितने धन्य के लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम उनको देख सके ऐसे बनाया। He opened our eyes. उन्होंने हमारी आंखें को खोला। The same, this stranger, he opened the eyes and they recognized him. जैसे ये अजनबी ने उनके आंखें खोला तो तब वो लोग उनको पहचान लिए। They know this stranger was known as but the Lord Jesus himself. वो अजनबी कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद था। Then immediately when they recognized him, he disappeared. जब वो दोनों इनको पहचान लिए कि ये प्रभु यीशु मसीह है वो उनके आंखों में से छिप गया। And what's the purpose of Jesus going with them? ये प्रभु यीशु मसीह का उनके साथ जाने का उद्देश्य क्या था? 2.5 hours of teaching the word of God, prophecies concerning Jesus, explaining to them. 2 ढाई घंटे उनके साथ चलना, यीशु के बारे में जितने भी भविष्यवाणी किया गया था उनको बताना। When they compelled him to go with their home, he went. जब उन्होंने उनको घर पे आपने बुलाया, निमंत्रण दिया तो उनके साथ चले गए। He took the bread, blessed it, and broke it and gave it to them. Only one purpose. इन्होंने उनसे रोटी लिया, उनको तोड़ा, धन्यवाद दिया, उनको दिया। एक ही उसका उद्देश्य ये था, That is that they may know me. ताकि वो उनको पहचान सके। My beloved, what a blessed people we are. कितने धन्य के लोग हम लोग हैं। You know, God could have created you and me like a Hindu man and Muslim man, even Christian family, not knowing the Savior's love personally. प्रभु हमें ऐसे भी सृष्टि करता था, हिंदू मुस्लिम के तरह, और इवन क्रिश्चियन जो उदार मुक्ति नहीं पाए, ऐसे भी हो सकते थे हम लोग। He helped us to see the bread from heaven is broken at Calvary, so that looking unto that cross, God helped us to have salvation. हाँ, उन्होंने हमें ऐसा सहायता किया कि हम स्वर्ग की मन्ना रोटी को उनको कलवरी क्रूस में देख सके और हमें उधार दिया गया। And Jesus disappeared. और उसके बाद प्रभु छिप गए। And blessed are those who look unto him who was broken on the cross and their eyes are opened. धन्य वो लोग जो उनके क्रूस पे देखे, जो तोड़ा हुआ था और उनके आंखें खुल गए। And when they recognized him, Jesus disappeared. What did they do? और जब उन्होंने देखा कि वो उनके आंखों से छिप गए, कहीं गुम हो गए, तो उन्होंने क्या किया? And then the Bible says, then they asked each other, our hearts kept burning within us as he was talking to us on the road and explaining the scriptures to us. Didn't they? यहाँ पे 32 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने आपस में कहा,
जब वो मार्ग में से हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ में हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? And now what did they do? They, verse 33, they got up right away, went back to Jerusalem, and found the 11 disciples and their companions all together. और तब वो दोनों ने क्या किया? 33 पद में हम पढ़ते हैं, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। They had a great desire to tell about this one. Before that, I just want to read this one. Passionate desire of the Lord is that we may know Him. इससे पहले उनके पास ऐसा उत्तेजित हुए कि ताकि वो प्रभु को पहचान सके। The desire of the Lord is that you and I should know Him. प्रभु का इच्छा ये है कि हम लोग उन्हें जान सकें। Now look, see the next one, 13th one. The Lord's ministry can be done through only by those who are willing to sacrifice their comfort and time. हाँ, वो प्रभु की सेवा वही लोग कर सकते हैं जो अपने समय और अपने आराम को प्रभु के लिए बलिदान कर सकते हैं। Remember, they around 4 o'clock they started to from Jerusalem to Emmaus. हम ध्यान दें कि वो 4 बजे लगभग यरूशलेम से एमाउस तक चलने लगे थे 6:30 they reached that place, और 6:30 बजे वो इमानुस पहुंचे। and then Jesus goes to their home. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे गए And then these things happen, food preparation for these three people, all these things happen there. और उसके बाद ये 3 लोगों के लिए खाना बनाना, ये सब सारी बातें हुई। Then they had the food. और जब उन्होंने खाना लिया, How long it took? It says in the same hour, they usi ghadi 33. They got up right away, went back to Jerusalem. और वो 33 पद में पढ़ते हैं, उसके बाद वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। That means before 1 hour, in between 1 hour, the cooking, eating, everything finished. Three people cooking food. 1 घंटा के अंदर अंदर 3 लोगों के लिए खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया। Now what they did is very, very important. अब वो क्या किए, ये बड़े अनिवार्य है। Now they are really excited अब वो because they were talking with the Lord Jesus Himself. जब उनको ये पता चला कि ये प्रभु यीशु मसीह खुद इन लोगों के साथ बात कर रहे थे, वो बड़े उत्तेजित हुए। Then what did they do? They decided, now itself we will go back to Jerusalem and tell other people. और उन्होंने ये निर्णय किया कि इसी घड़ी हम लौट के यरूशलेम जाएंगे और बाकी लोगों को ये बातें They बताएंगे। did not say, oh, tomorrow morning we will go. Now it is 6:30, 7 o'clock. Tomorrow morning we'll go back to Jerusalem and tell everybody about. No, 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 no. That same hour they returned. उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो रात हो चुका है, 6:30 बज चुका है, हम कल सुबह जाके बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला इसी घड़ी हम जाके बताएंगे। So they started their long journey back to Jerusalem, another 2.5 hours. If they started 7 o'clock, half an hour cooking, eating, everything over, within an hour it was over. So maybe calculate around 7 o'clock they started. 9:30 they will reach Jerusalem. अगर ये खाना के बाद अगर वो चले वहां पे होंगे, दूसरा 2.5 घंटा मान के चल, 9:30 तक वहां पे पहुंचे होंगे। Already they walked 2.5 hours and now another 2.5 hours. 2.5 घंटा पहले ही चल चुके थे, अब और 2.5 घंटा वापस। They probably reached Jerusalem back maybe at 9:30. हो सकता 7 है plus 2.5. 7 बजे से 2.5 घंटा और गड़े तो 9:30, 9:30 वहाँ पर पहुंचे होंगे यरूशलेम पे। And when they reached, what did they do? और जब वहां पे It पहुंचे is उन्होंने क्या किया? it is 9:30 at that time. They didn't say, tomorrow morning we will tell you. And the disciples, others were, we had a wonderful time. You know, Jesus appeared before us and we talked with them. Many things are there. Tomorrow morning we will tell you everything. No, they started telling everything what happened on the road.
वहाँ पे वो जब 9:30 बजे पहुँचे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कल सुबह बताएंगे कि हमने प्रभु एक अजनबी मिला, वो हमें ऐसे बताया, बाद में पता चला वो प्रभु यीशु मसीह था। मैं सुबह ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसी घड़ी उनको ये बातें बताने लगे। Verse 35, read it, please. Then the two men began to tell what had happened on the road and how they had recognized him when he broke the bread in pieces. तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और ये भी कि उन्होंने उस रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। What happened on the road? That 2.5 hours teaching about the prophecies concerning Jesus, picked one by one, one by one, one by one, and explained to them. All those things they started telling to these other disciples who were there in the room. वो दोनों ने मार्ग की बातें, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में जो भविष्यवाणी बताई थी, एक एक उनको समझाया था, ये सारी बातें उन उन चेलों को बताने लग गए। And 9:30 to another 2.5 hours. Add. 9:30 से और 2.5 घंटे। And now 11 o'clock. अब 11 बज गया है। Why did they do all these things? ये सारा उन्होंने क्यों किया? When you know the Lord as personal Savior, I tell you something. You will love Him and you will be willing to sacrifice your comfort and time. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, तो अपना समय और अपना आराम उसके लिए आप बलिदान दे सकते हैं। 14th one, I will love for the Lord forced them to tell everything happened on the road to those other disciples. तो परमेश्वर के प्रति जो उनका प्रेम था, उसने उनको ये किया कि वो लोग सारी बातें बाकी चेलों को बताएं। Another 2.5 hours. और 2 2.5 घंटे। Now, the next one I'll tell. Lord Jesus comes and gives what they were missing. At that time, Jesus comes there and he says, Peace be with you all. Verse अब जब 36. जब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तो अचानक प्रभु यीशु मसीह वहां पे उनके बीच में खड़ा हुआ, और वो कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। 36 पद। Remember, near about 11:30 in the night, 11 or 11:30. 11 11:30 रात का हो चुका था। Jesus said, Peace be with you. अब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। Exactly one thing they were missing. The primary need of these people were peace. That was not there. So Jesus gives that one. Peace be with you. हाँ, इनको एक चीज की कमी थी, जो एक प्राथमिक जो बातें थी, बुनियादी बातें थी, शांति था। तब प्रभु ने उन्हें, तुम्हें शांति मिले बोल के बोला। And then conversation begins, and in which they were afraid. And verse 38, he is asking a question. Why are you doubting? और वो जब बातें करने लगे, वो घबरा गए। तब 38 पद में उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? Look at my hands and feet, verse 39. And because it's really me, touch me and look at me, because a ghost doesn't have flesh and bones as you see that I have. जब उनको देख के वो घबरा गए थे, तो 39 पद में प्रभु ने कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। And he continued and he opened their minds. Verse 45 says, and he opened their minds so that they might understand the scriptures. अब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। And then he is telling, then the Messiah has to be suffering and then rise from the dead, that day, and then repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in his name to all the nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am sending to you what my father promised. So stay here in the city until you have been clothed with the power from on high. Up to और 49 brief. हाँ, 46 47 48 और 49 में पढ़ रहा हूँ। और उसने कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम में से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। 48 पद,
तुम इन सब बातों के गवाह हो। 49, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Now, I want to conclude with this. Two things just before ascension, going up to heaven, Jesus did. That is the last action he did was he blessed them. प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले एक जो कार्य किया, उनको आशीष दिया। Verse 50 says, when Jesus had led them out as far as Bethany, he lifted up his hands and blessed them. 24:51, while he was blessing them, he left them and he was carried up into heaven. तब ये 50 और 51 पद में, तब वो उन्हें बैथनिया तक बाहर से ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वे उसके अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। Now, after the ascension, the first action of these people, what is that? And verse 52 and 53, and they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy and praising God continually in the temple. जब प्रभु को स्वर्ग में उठाने के बाद जो पहला कार्य इन्होंने क्या किया, 52 और 53 पद में पढ़ते हैं, तब वे उनको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। Before Jesus went ascended to heaven, the last thing he did was he blessed them. प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले जो अंतिम कार्य जो उन्होंने किया, प्रभु ने उनको आशीष दिया। And the first thing what they did after this was they worshipped him. और पहला कार्य प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से बाद जो पहला कार्य जो लोगों ने क्या किया, कि वो उनको दंडवत करके आनंद से यरूशलेम में लौट गए। My beloved, we read when this Emmaus journey began, these two people, they were very sad. हमने पढ़ रहे थे, जैसे ये इमाउस के जो मार्ग जो शुरू हुआ था चलना, पहली जब शुरू में ये लोग बड़े दुखी थे, ये दो लोग। All what Jesus did made them happy people, rejoicing and worshippers. जब प्रभु, लेकिन उनके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके जीवन में किया, कि वो उनको अपना आराधक बनाया, उनको शांति दी। I have mentioned here first last thing 18. It's always good to remember how our life was before the Lord opened our eyes. A life full of sadness and sorrow. But He chose us, washed us, gave a robe of righteousness, gave the joy of salvation. हमें ये याद करना बड़ा जरूरी है। अच्छा है कि हम प्रभु को पाने से पहले कैसे थे, जब हम लोग दुख में थे, हम लोग अंधकार में थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और रगत से धोआ और धार्मिकता का वस्त्र पहनाया और हमें उधार दिया। Now, I have put a challenging statement there. But after having our eyes opened and became His children, what we do now? लेकिन ये हमारे पास एक सवाल है, कि हमारे आंखें खुलने के बाद जब हम उसके संतान हो गए, उनके बच्चे हो गए, हमें अभी क्या करना है आगे। We heard what these two people they did. ये हमने देखा कि ये दो लोगों ने क्या किया, What we will do? हम क्या करेंगे। Bible very clearly says, those who believe on the Lord Jesus only will be saved. प्रभु साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु में विश्वास करेंगे वही, उन्हीं को उद्धार मिलेगा। The Lord help us to do what God wants us to do in these last days. इन अंतिम दिनों में प्रभु सहायता करे कि हम वही कार्य करें जो प्रभु हमसे चाहता है। God bless you all. प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, आज की संध्या में प्रभु जी
इम्माउस जर्नी के विषय में आपने कई एक बातों का खुलासा किया जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात को प्रकट करता है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को जीवनदाता के रूप में जगत में भेजा है। ये अद्भुत है हम सबके लिए, क्योंकि हम तो सब पतित लोग हैं, घिनौने लोग हैं, आपसे दूर चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये आपका अद्भुत प्रेम प्रभु हमें आपके समीप खींच लाया। धन्यवाद देता हूँ इस जर्नी में, इमाउस की जर्नी, यरूशलेम इमाउस के बीच में जो 11 किलोमीटर की जर्नी है लगभग, उसमें प्रभु उनके साथ 2 लोगों के साथ में हो लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी, जब तक हमारी आंखें नहीं खोली जाएंगी वजन 119:18 के अनुसार, तो हम उसको नहीं पहचानते। और जब हम उसको नहीं पहचानेंगे तो हम अपने हृदय में उसका आदरमान कैसे कर पाएंगे। लेकिन धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने बड़े स्पष्ट तरीके से हम सबको समझाया। जब उन्होंने 2 व्यक्तियों ने, जब वे बड़े उदास थे और यीशु मसीह को अजनबी समझते हुए जब शाम हो गई, तो उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया। जब तक हम अपने प्रभु को अपने हृदय मन में इनवाइट नहीं करते हैं, अपने हृदय मन में जगह नहीं देते, तो प्रभु हमारे लिए कैसे काम करेगा। और जब उन्होंने उस बीच में हमारे प्रभु ने उन्हें रोटी तोड़ करके दी और आशीष मांगी, तो उनकी आंखें खुल गईं। हम देखते हैं कि प्रभु जी कि परमेश्वर का ये बड़ा इंतजाम हम मानव जाति के लिए है कि हम कैसे उद्धार पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं, क्योंकि हम सब पापी दुराचारी लोग हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमें बचाना चाहता है परमेश्वर के दंड से। इसीलिए उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया। इस बात को समझना हल्की बात प्रभु नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जब तक कि हम इन सब बातों को हृदय मन से नहीं समझेंगे और न ही प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, हमारी पहचान कैसे हो सकती है। क्योंकि जीवन का मार्ग वही है, यूहन्ना 14:6, सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। धन्यवाद देता हूँ सब प्रकार की उन आत्मिक आशीषों के विषय में जो सिर्फ आपके पास है प्रभु। हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप हमारे प्रभु यीशु मसीह से कैसा है, ये हमें अपने आप को देखना है, जांचना है, परखना है और अपनी इस कमी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में
रख करके आगे बढ़ना है। हमने देखा 2 दुखी पुरुष और उनके जीवन में उदासी थी, मायूसी थी, लेकिन कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया और जब उन्होंने रोटी तोड़ करके उन्हें दी तो उनकी आंखें खुल गई। ठीक उसी प्रकार से प्रभु आपका वचन के द्वारा हमारे हृदय मन में प्रकाश आता है। जब तक कि हम आपके निकट नम्र और दीन बन करके आपके लिए खोजी न बने तो हमारे जीवन में मायूसी रहेगी, उदासी रहेगी। लेकिन प्रभु उस मायूसी को शांति में बदलना चाहता है, क्योंकि वो एकमात्र शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, थोड़े समय में इन सब बातों को खुलासा करने के लिए, और साथ साथ हमें ये चेतावनी भी मिली है कि हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं, कैसे हम उसके नज़दीक जा सकते हैं। अपने हृदय में उसे इनवाइट करें, आमंत्रित करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सारे प्रियजनों के लिए जिन्होंने आपके जीवित वचनों से सुना है। हमारे प्रत्येक के जीवन में आशीष का कारण हो। और भाई याकूब एलिशा के लिए धन्यवाद, जो उन्होंने थोड़ा समय निकाल करके हमारे बीच में इस इम्माउस जर्नी के ब्लेसिंग के विषय में प्रकाश डाला है। प्रभु उन्हें उनका प्रतिफल दीजिए, दया कीजिए। बाकी के समय को आपके चरणों में रखते विनती बड़े विश्वास साथ मसीह यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।